Good evening. Welcome to another episode of Awaz in Focus, a part of Azad Awaz. Azad Awaz is a monthly patrika that focuses on the marginalized sections of the society, whose voices are often muted in the cacophony of flashy mainstream media discourse. And when referring to marginalization, this platform does not aim to restrict itself to the traditional focus on social aggregates like caste, race alone, but aspires to include a discussion based on class, gender, identity, environmentalism, representation. So this month's Patrika attempts to have an in-depth analysis about the cinema, especially Bollywood cinema and theatre in India. And for this edition, we'll have so basically for this edition we are focusing on understanding the percolation of Hindu nationalist agenda into the medium of films and the further perpetuation of same through their portrayal of nationalism, religion, and class. We aim to understand and highlight the othering of Muslims by analyzing the changing trends in the portrayals of religion and in congruence with the evolution of Hindu nationalism over the last 2 decades. One of the key discussions that we'll have today would be on the depiction of Muslims and other religious minorities in films and the perpetuation of damaging tropes and stereotypes relating to both personal and structural Islamophobia. For the same, we have with us Mr. Prabjot Singh Ahluwalia. He is a renowned theatre and film director who has founded the creative production company called The Roots India. The Roots Short Play Festival, ideated by Mr. Prabjot, is the first and only pan-India theatre festival for short plays. He's also a faculty member. He was also a faculty member at the Ulterior School of Dramatic Arts, with huge experience in corporate plays, short films, and web series. And as an actor and director, today he'll shed some light on the issues we are concerned about. Right. Greetings, Mr. Prajot, sir. Uh, Starting with the very basic question, I'll start. So, according to you, from the point of view, when we talk about historical context, how do you see cinema as a social practice involved in the construction of national identities? And do you think India's theatre and cinema has been shaped by the ideas of nationalism as well, the motive to make money around it? Yeah. So, firstly, thank you for inviting for the conversation, Jatin. It's very important to talk about things that you've talked about, right? It's very important that we discuss such things which are happening around. Uh, Historically, if you talk about cinema, I mean, I would use this word as a visual language, right? Cinema is one part of it, right? And if you look at the visual language in the past 100 years, 200 years, cinema is a very young format. It's very young. है ना, 100-200 साल पुराना है. If you look at theater, if you look at, the tool is always to interact with the masses. It's to interact with the people, you know, and as a creator, as a producer, the whole idea is to actually talk to the masses and put your point of view. Yeah. uh, मैं अगर पिछले राजा हरिश्चंद्र फिल्म से अगर हम बात कर लें, है ना, till the recent movie I saw last night was लाल सिंह चड्ढा. अभी नेटफ्लिक्स पे आई तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि कैसे अडेप्ट हुई है एंड एवरीथिंग. Things have changed. There's no, and I won't say it have evolved, है ना. एक होता है चेंज, एक होता है कि इवॉल्व हो रही है चीजें, है ना. तो I think the way visual languages, the way things are changing from let's say 1900s to 2000, the century have changed almost. It's not that very positive, but at the same time I would say there's always a space of resistance. There's always a space, there's always people working, है ना, to create that resistance कि वो मरे ना कभी क्रांति. पहले पुरानी फिल्में देखते थे ना हिस्टोरिकली, तो वो होता था कि एक स्ट्रक्चर में एक वो है जो उस व्यक्ति ने कंगन ले लिए हैं माँ के, है ना, और वो व्यक्ति गलत है जिसने माँ के कंगन ले लिए हैं, है ना, और लड़का उसकी फाइट के लिए, है ना, वो एक डकैत बन जाता है ना, और वो उसको मार देता है और कंगन ले आता है. उसके लिए माँ उसकी इंपॉर्टेंट होती है. एक किस्म की फिल्में हमने देखी है, राइट, है ना. तो इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकली आप देखते हो कि
you are open to say that ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि गलत करते हैं. यू सी फिल्म्स जहां पर आपको पॉलिटिशियन को आप दिखाते हो कि वो गलत है, यू नो, आप एक स्ट्रक्चर के अंदर बोलते हो ना कि ये पॉलिटिशियन करप्ट है, ये पुलिस वाला पैसे ले लेता है. ऐसी फिल्में देखी है हमने 90s में बनते हुए ना, जहां पर आप देखते हो गैंडा स्वामी एक करके पॉलिटिशियन आता है, वो देश को बेच देता है ना, वो करप्टेड पॉलिटिशियन है, दंगे कराता है. कमाल का नॉवल जो कि फिल्म में भी अडेप्ट हुआ है, तमस करके, यू नो, अगर आप वो देखो, उसमें दिखाया गया है कि पॉलिटिशियन कैसे अपने फायदे के लिए झगड़ा करवा देते हैं. हाँ, तो वो चीजें बनी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट हैव इंक्रीज्ड, है ना. सेंसर बोर्ड का काम था एक सर्टिफिकेट देना, यूएए, अब वो काट भी रहा है फिल्म्स को. तो सर्टिफिकेशन देने में और किसी को ये बताने में कि ये जाएगा और ये नहीं जाएगा में बहुत फर्क है, राइट. So now I personally feel as a creator, as a person who makes visual content, who makes theater, who makes films, कि अब सोचना पड़ता है बनाने से पहले. पहले होता था कि बात कहनी है ना, अब होता है कि ये बात कह सकते हैं कि नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. I mean, we have been working since a decade now. ये डिफरेंस है. आई डोंट सी आज की फिल्म में आप ये बोल सकते हो कि ये इंसान ने, ये नेता ने गलत किया, है ना. अब बड़ा गवर्नमेंट सेंट्रिक काम शुरू हो गया है कि अगर अभी एक किस्म की गवर्नमेंट चल रही है तो उसको गालियां दे दो. और ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था. When let's say Indira Gandhi was in power, there were films made to just satisfy egos, right? But at the same time, resistance was a part of the discussion, right? There were open conversations happening. मुझे याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन था, इमरजेंसी हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन निकाला जिसपे हर लाल बत्ती पर एक व्यक्ति, आई थिंक इमरजेंसी के टाइम का, काली पट्टी बांध के खड़ा हुआ था. जब यू नो बोला गया कि यार ये गलत है, एज अ न्यूज़पेपर, एज अ पब्लिशिंग हाउस, आई एम अगेंस्ट इट. नाउ आई डोंट सी सच थिंग्स हैपनिंग, you know. So historically of course the visual language has changed, the shots have changed. अभी मैं एक recently I was watching a film, तो उसमें ना वो शॉट कहाँ से शुरू होता है, वो भारत के झंडे से कैमरा पीछे से लेके जाता है, तो वो बात अलग बोलने की बात है. तो the shot selection of DOPs, the music choices, you know, the actors choices, the dialogue writing, I think it's, I understand as an artist point also कि वो थोड़ा scary space में लिखा जाता है. बट एक छोटी सी बात, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, एक छोटी सी बात कि इस कॉन्वर्सेशन में मैं आपकी तरफ से नहीं बोल रहा. आपने बोला कि यू नो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म, एक नेशनलिस्टिक अप्रोच एग्जिस्ट करती है. ये इस कॉन्वर्सेशन का बेस आपके हिसाब से ये है. मैं चाह रहा हूं हम उसको डाइसेक्ट करें कि ये भी क्यों है. It's very important to dissect that also ना. I don't want a one-sided conversation to happen कि नहीं ये तो एग्जिस्ट करता ही है तो अब हम उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं. नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी करता है, लेकिन आज वो इतना ओपनली कंट्रोल आ गया है पब्लिशिंग हाउसेस, मीडिया हाउसेस में. आज इतना ओपन हो गया है, इतना यू नो कि दूसरे की रेसिस्टेंस को देखा नहीं जाता है. ये बहुत बड़ा चेंज है. मैं मतलब हैरान था जब मोदी ने, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, यू नो, या तो वो प्राइम मिनिस्टर का उनका टेन्योर खत्म हो जाता, या यू नो वो एक किस्म से अपना काम करके वो रहते ना, तो मैं एक बोलता एक फिल्म बनाई भाई कमाल की, विवेक ओबरॉय, जिसमें उन्होंने एक्टर लिया एक कमाल का, और उन्होंने बोला जी मोदी नाम पे एक फिल्म बनानी है मुझे. आई गेट इट, बट a sitting prime minister before the elections, you come out with a certain agenda, and using cinema as an agenda, a soft way to put your point ahead, it's very risky, yaar. Very risky, because people go to cinema, they believe in cinema.
लोगों का लाइफस्टाइल बदलता है, लोग कॉस्ट्यूम चेंज, अपने रहन सहन, लोगों का कॉस्ट्यूम, लोगों की सुनने की चॉइसेस, लोगों की देखने का तरीका, सिनेमा एक मेजर रोल प्ले करता है उसमें, है ना? तो वो थोड़ा सा आई थिंक है। प्लस लास्ट थिंग दैट द रोल ऑफ टीवी, द रोल ऑफ टेलीविजन, पहले सिनेमा टेलीविजन पे नहीं दिखता था, फिर टेलीविजन आया, फिर उसका रोल सिनेमा का चेंज हो गया, अब सिनेमा घर घर हो गया, राइट? फिर उसके बाद टेलीविजन के बाद आपका यूट्यूब आ गया, एप्स आ गए हैं, तो अब घर घर की जगह हाथ हाथ में है सिनेमा, सो इट्स मच मोर इम्पैक्टिंग, राइट? सो वो एक थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो है जो कि थोड़ा रिस्की है। वी कैन गो अहेड, मे बी कुछ और दिमाग में होगा तो विल शेयर। Yeah, so yeah, coming to this topic that ki bhai, in the last 20 years, when we compare cinema and the trend, when we do the trend analysis, what can you say that before these 20 years, what was the core idea was before to create maybe a creation, and how it has evolved in the last 20 years, and what are the changes that you can see when it comes to, you know, cinema portraying more national identities or hyper nationalism in a way? And secondly, to you follow up with this point, what do you think there are some political and contextual compulsions that as a filmmaker you face while creating a, you know, narrative? Right, so I'll go with the second part first and then come to the first part. So yes, when we are creating something, then the creation needs to be distributed as well, right? मतलब अगर एक वीडियो बनाया तो यूट्यूब पे, पिक्चर हॉल में, किसी फिल्म फेस्टिवल में कहीं तो जाएगा वो, या फिर कोई थिएटर परफॉर्मेंस हो रहा है तो कहीं तो होगा परफॉर्म। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वंस देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ माहौल अराउंड यू, सो वंस यू व्हेन यू आर राइटिंग ना, you think twice. Well, I'm telling you, I started writing around 2010. तब भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे, बहुत frankly, right? But after 2014, I'm telling you that एक बार के लिए सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा सब लोग, मैं अपनी fraternity की responsibility नहीं ले सकता, हो सकता है a lot of people doesn't think they do it, right? But I as a creator have started thinking, I've given a second thought. So let's say I'm writing a piece right now which will be made in a theater play first and then in a film, which is about the identity of Muslims and how it have changed over the period of last 100 years. पिछले 100 साल में एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ क्या क्या हुआ जिससे एक किस्म का यू नो एक किस्म का टेंशन बिल्ड हो गया है। तो उसमें मैं लिखना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग सम डायलॉग्स जो कि which comes from a research point of view, मतलब मैं नहीं वो बना रहा डायलॉग, वो लोगों ने मुझे बोला, मैंने रिकॉर्ड किया तो लिखा। बट एज सून एज आई राइट इट, मैंने कहा नहीं यार ये मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? मे बी लोग मुझे ये समझ लेंगे, मे बी ये इस तरीके से इंटरप्रेट ना हो जाए, ये उस तरीके से इंटरप्रेट ना हो जाए। सो ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ सिनेरियोज वी आर इन राइट नाउ, राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज श्योरली अ प्रॉब्लम फॉर आर्टिस्ट, इट इज राइट। A lot of people say कि नहीं नहीं अब तुम्हें डर लग रहा है, जब पहले था तुम बोल भी नहीं सकते थे, अब तुम ये बात भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, ये बात तो मैं पहले भी बोल सकता था कि there is a problem, but if the minds are censored while creating it only, that's a bigger one. तो मेरी पॉलिटिक्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है फिर, क्योंकि अगर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, we used to perform street plays, and while performing street plays there were 1000 people watching us, right? पहले कभी डर नहीं लगता था कि वहां से कोई बाहर निकल के आके हमें मार देगा। अब एक डर है कि ऑडियंस में किसी को बुरी लग गई बात तो वो मुझे मार देगा। So there is a certain intolerance around the religious sentiments. There is no conversation happening. And as a theatrical thing, as a film, I would like to have a conversation with a certain, you may disagree with me, right? There can be 100 disagreements what I'm showing, but with disagreements अब क्या होने लगा है कि वो डिसएग्रीमेंट बड़ा ही ना वायलेंट रूप ले लेता है, वो डिसएग्रीमेंट बड़ा ही वैसा रूप ले लेता है कि नहीं नहीं आप तो इस किस्म के व्यक्ति हैं जो ये बना रहे हैं। या तो मुझे कोई बोल देगा आप लिबरल स्कूल के हैं, आप खान मार्केट गैंग है,
आप आप एक किस्म से एक आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, आप वेस्ट के थॉट क्या आ रहे हैं, ऐसी बातें बोल दी जाएंगी आपको, वो खतरनाक है जो वो आपको ऐसे बना दे। फर्स्ट, नाउ सेकंड पॉइंट, मैं भी जस्ट बिफोर योर डिस्कशन ना, सो आई जस्ट रोट ऑन गूगल की यार कोई टेल मी 10 फिल्म्स जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी के अराउंड बात करती हैं, सो देयर वर सर्टेन आर्टिकल्स दैट आई वाज रीडिंग। तो मेरे दिमाग में फिर मैंने सोचा आई शुड नॉट रीड देम एंड जस्ट गो बैक टू माय मेमोरीज। So there's an interesting film called Ghulam Mustafa. This is a film which was, Nana Patekar was an actor in it. Okay. And उसका plot, आपने देखी वो film? नहीं. हाँ, so Ghulam Mustafa में क्या होता है? There is a Muslim guy played by Nana Patekar. Okay. और वो ना एक फैमिली के साथ रहने चला जाता है. So Nana Patekar is a gunda. Okay. He's a गुंडा ऑफ द टाउन, लेकिन वो मुस्लिम है। उसका नाम क्या है? मुस्तफा। और उसकी आइडेंटिटी विद कॉस्ट्यूम्स, विद कैप, विद कपड़ा पीछे जो काफ्तान है, वो एक आइडेंटिटी मुस्लिम है वो। ठीक है। अब वो एक जिस किस्म से स्टोरी अनफोल्ड होती है, वो एक ब्राह्मणों के घर पे रहने चला जाता है। ठीक है। अब जो ब्राह्मणों के घर पे रहने जाता है, तो जो वाइफ है पेड बाय इला अरुणा, अरुणा ईरानी is playing the wife, और उसको प्रॉब्लम है कि हाउ कैन अ मुस्लिम एंटर द हाउस। शी हैव अ प्रॉब्लम विद इट, टिपिकल अ प्रॉब्लम कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, देयर इज अ डायलॉग देयर, ये लोग तो वैसे होते हैं, राइट। एंड हर हस्बैंड हु प्लेज एसीपी प्रद्युमन, जो प्ले करते हैं, उनके हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वहां पर, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तुम मत सोचो, ऐसा नहीं, वो है इंसान ही तो है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। एंड दिस गाय नाउ गुलाम मुस्तफा helps the family to come out of a lot of challenges, and suddenly there is a harmony that comes in between both of them. ठीक है ना। ये फिल्म का प्लॉट है, मतलब जेन्युइनली ये ऐसी फिल्म बनी हुई है हमारे देश में, राइट, जहां पर, और ये टीवी पे देखी थी मैंने, पिक्चर हॉल में नहीं देखी थी, जहां पर एक मुसलमान आदमी एक ब्राह्मण के घर रहने जाता है, और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है, वो थॉट के कॉन्फ्लिक्ट बोले वर्बली बोले जाते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है थ्रू आउट द फिल्म। And at that point of time, there was no person coming in saying कि नहीं नहीं मुसलमानों के खिलाफ आपने ये बोल दिया, आपने मुसलमान को गलत लाइट में दिखा दिया, because the storytelling was in a way that, वो काटता है डायरेक्टर आपके इस्लामोफोबिक थॉट्स को, there's a storytelling in that way, right? और इट्स अ गुड फिल्म, मतलब वो मुसलमान के बारे में नहीं है, बट एक गुलाम मुस्तफा उसका टाइटल है, वो रखता है फ्रंट में मुस्तफा को। अब इसको डाइसेक्ट करने जाओ तो आप बोल सकते हो कि उन्होंने मुसलमान को ही एक आइडेंटिटी को ही एक गुंडा बनाया। मेक सेंस, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फिल्म दैट एक आइडेंटिटी ही गुंडे की है जो कि एक मुसलमान है, और ब्राह्मण एक आईएएस ऑफिसर है, राइट, है ना। और इन दोनों का संगम होता है, और वो ब्राह्मण और मुसलमान इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, स्टोरी ये है। तो अगर मैं डाइसेक्ट करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम है उस बात से कि एक ही किस्म की इमेज को आप गुंडा क्यों बना रहे हो, बट एट द होल स्टोरी टेलिंग आई वुड से ठीक है, कि एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया आपने। ठीक है ना। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर यू डोंट सी अ मुस्लिम सोल्जर फाइटिंग फॉर द कंट्री, नो। ठीक है, आप फिल्मों में मुस्लिम सोल्जर नहीं देखते। ठीक है, यू डोंट सी अ मुस्लिम आईएएस ऑफिसर। ठीक है, अभी वो एक फिल्म बनी रिचा चड्डा, जिसमें मायावती का इंस्पायर्ड फ्रॉम मायावती स्टोरी, मैडम चीफ मिनिस्टर, राइट, उसमें आईएएस ऑफिसर इज अ मुस्लिम गाय, एंड दैट विमेन, है ना, बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, जो रिचा चड्डा इज प्लेइंग, राइट। सो उस सिनेरियो के अंदर ठीक है, आईएएस ऑफिसर आपने दिखाया, वो लोग मिलके आ रहे हैं, एवरीथिंग, बट यूजुअली यू डोंट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूजुअल, एक दो एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो यस, हिस्टोरिकली आप देखते हो जब बॉर्डर जैसी फिल्म, जिसमें आप एक करेक्टर बनाते हो जो कि पाकिस्तानी है, और एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम दो अलग बातें हैं, राइट। यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, नाउ आइडेंटिटी हैव मर्ज्ड टुगेदर, राइट।
more Muslims are there in India compared to Pakistan. Right? गदर जैसी फिल्म्स तक चल रहा था काम, you know. But Jatin, interestingly, I'm just dissecting because I'm working on certain topic right now. Historically, we have been taught to hate minorities, है ना? और जब वो एक बड़े पर्दे पर आ जाती है ना बात, तो आप कहते हो ये बात तो ये कह रहा है ना, शाहरुख कह रहा है, तो फिर मैं क्यों ना कह सकूं? सो ये एक अपब्रिंगिंग का भी सवाल है, और उस अपब्रिंगिंग के साथ उसके इंटेंशन का कि आप ये क्यों कर रहे हो. There are certain directors who have accepted in past कि हाँ यार मैंने unintentionally हुआ है, मैं intentional नहीं चाहता था ये. For example, I remember when Article 15 were released, Anubhav Sinha, had a great conversation in JNU only, that he told it's very unintentional that I want, मतलब वो savior जो आयुष्मान खुराना है वो ब्राह्मण ही है, right? तो उसने बोला कि वो unintentional हुआ, मतलब मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा इस लेयर का भी, so उन्होंने ये accept किया. But now there's certainly, if you look at films like Kashmir Files, Modi, Uri, on the face of it कह रहे हैं हाँ ऐसा है, हाइपर नेशनलिज्म की आपने बात करी. मुझे अभी तक हैरानगी है इस बात की कि कजारिया की एड में देश का झंडा क्यों लहरा रहा है. मुझे सच्ची में समझ नहीं आया. बेच तो टायल ही रहा है ना भाई, ये देश की टायल है. अरे कमाल है. अब हर बात ऐसे हो जाएगी ये देश की टाइल है, ये देश का जूता है, ये देश के पॉपकॉर्न है, ये देश का समोसा है, ये देश का, ऐसे तो हर चीज बेच दूंगा मैं, राइट? सो अब जो आप एड्स देखते हो उसका लैंग्वेज बदलना नेशनलिज्म के सिनेरियो के हिसाब से, आप जो फिल्म्स देखते हो उसका लैंग्वेज बदलना, आई थिंक ये बहुत ही नेचुरल है. बट ये स्टेट इसको सपोर्ट करता है, ये एक अलग पॉइंट है. सो मैंने 3 पॉइंटर जो मेजरली बोले, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका एक क्रिएटिव वर्क जो आप बना रहे हो उसके ऊपर डिस्कशन, और तीसरा स्टेट का सपोर्ट. व्हेन आई से स्टेट, दैट मींस योर मीडिया हाउसेस, योर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, योर सोसाइटी, इट कम्स, एवरीथिंग कम्स इनटू अ स्टेट, है ना? सो ये मेरा एक इस पर रिस्पांस है. लेट मी नो इफ यू आर थिंकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक. आई एम गोइंग हियर वेयर राइट नाउ. No issues. That was a very interesting observation and insight to it. And yeah, actually, we all have observed that in small perspectives in our life. And talking about the current creation that you are working on, that will be highlighting about the Muslim identity. My next question would be around how do you think this constant process of vilification of Muslims and producing the image of a Muslim, other Muslim, or maybe a good Muslim and a bad Muslim, and how has films brought this up, and how do you think what are the nationalistic agendas behind that too? Like, so Jatin, मैं ना एक इंटरेस्टिंग उससे स्टार्ट करता हूँ अपने. So when I was working with Atelier, so we did a play called Seek Kebab, right? So Seek Kebab was a play around the Sikh genocide that happened in 1984. So Uma Chakravarti is one of the greatest and senior writer that we have. उन्होंने ना एक एनेक्डोट शेयर किया अपनी बुक में, दिल्ली राइट्स में. वो बोलते हैं कि जब 1984 में इंदिरा गांधी को गोली लगी, फिर छुट्टियां हो गई बच्चों की, सिख जेनोसाइड हुआ, लोगों को मारा गया, सिखों को मारा गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जोक चला साउथ दिल्ली के स्कूल्स में, दैट व्हाट वुड यू कॉल अ बर्निंग सिख. जलाया गया ना उनको, तो एक बच्चा बोलता सीख कबाब, राइट? सो बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है, बट बड़ा डार्क जोक है. So what happened? Me and Kuljit sir planned to work around this thought. So I wanted to make it a comedy show. Comedy करेंगे कुछ. Funny है ना joke, तो लोगों के लिए funny है ना. What would you call a burning Sikh? Sikh kebab, है ना? तो funny joke है तो funny बनाते हैं 84 पे बात. So initially, apprehension थी कि तू करना चाहिए एक funny, but I was very sure that we should go with the dark comedy, right? So when I created the play, which was a great, I liked the play. I myself liked it. People liked it. अच्छे shows गए वगैरह वगैरह. But a lot of journalists came to
कवर्ड द प्ले, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया. उन्होंने बोला कि प्रभजोत, यू मेड दिस प्ले बिकॉज यू आर अ सिख, राइट? है ना? मतलब, और व्हाट वाज, और इट वाज अ लीडिंग क्वेश्चन, लाइक यू आर लीडिंग टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना. वो या तो आप सिख थे इसलिए आपने ये प्ले बनाया, या फिर आपको बनाने की इच्छा थी. तो इनिशियली आई वाज लाइक कि यार गलत बात है ये बोलना ना, कि मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि मैं एक सिख था इसलिए मैंने प्ले बनाया इनिशियली. बट देन आई रियलाइज दैट if other people are not working on minorities, then I have to, या तो आप बना देते as a Indian slash as Bengali, Punjabi, Gujarati, Marathi, whatever, है ना? या तो आप बनाते इसको, अगर आपको सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में करना है तो. अब आपने नहीं बनाया तो yes, of course, I have grown up with certain traumas. So yes, I have made this because I am a Sikh. But more than a Sikh, I am a minority in the country, right? And I would always make a play for minority. So that's my second project. When it started after that interview only, that I started working on a play called Murg Musallam, which was a second part of Sikh Kebab, which was around how Islamophobia have hit India and how it have been turned into a dish called Murg Musallam, right? So why did I share this incident with you? Because I would be coming and commenting on the whole scenario as a minority also. A lot of things that you would consider it as a topic of discussion is something that we as a minority suffer every day. तो अब क्या होता है कि हम लोग एज माइनॉरिटी थोड़े से एम्पावर हो जाते हैं या थोड़ी कोशिशें करते हैं, तो हमें क्रिएटिव पीस बनाने की तरफ चले जाते हैं. कमिंग टू योर पॉइंट दैट the showing of Muslim identity in a certain film, in a certain structure, right? यही था ना सवाल आपका, है ना? कि यही था ना. तो मुझे लगता है कि जहां से हमारी पिछली बात खत्म हुई थी, कि ना एक किस्म का आपको सिखाया गया है माइनॉरिटी को हेट करना, ठीक है ना? एंड देयर आर सर्टेन वेज दैट आपको बोला जाता है कि ये हमसे अलग है, चाहे उनकी आइडेंटिटी हो, चाहे उनका रहना सहना हो, और आपको एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है आपके दिमाग में कि अगर आप, मैं बोलूंगा गुजराती तो आप बोलेंगे पैसे कमाता होगा, है ना? आप बोलेंगे पंजाबी तो खाता होगा, आप बोलेंगे मुस्लिम तो मुर्गा खाता होगा, बड़ा ही स्पेसिफिक, बूचर होगा, है ना? सो एक किस्म की अपब्रिंगिंग दी गई है हम लोगों को कि ऐसे होते हैं माइनॉरिटीज, ऐसे ही होते हैं ये लोग. और फिल्म मेकर्स के पास भी अपब्रिंगिंग है. फर्स्ट थॉट ये है उनका दिखाने का तरीका मुसलमान, राइट, या किसी भी माइनॉरिटी को, या तो वो अपब्रिंगिंग का पार्ट है, वन, ठीक है. नंबर टू, उनको पता है कि लोग ये सोचते हैं, तो दे आर प्लेइंग स्मार्ट, दे वांटेड थिंग्स दैट वेज, नंबर टू. नंबर थ्री, दैट दे डोंट केयर इफ इट्स अपब्रिंगिंग, और लोग क्या चाहते हैं, मेरा स्टेट, मतलब मेरे एक पावर्स पसंद करेंगी, इसलिए मैं ये बना रहा हूं. थ्री रीजंस, राइट? कोई तीन रीजंस होंगे कोई भी किसी की आइडेंटिटी ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है. बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर करता हूं. गांधीनगर में या गुजरात में कहीं एक जगह पर एक ड्रिल चल रही थी. ड्रिल पता है क्या होती है? एक ड्रिल मतलब अगर कल को इमरजेंसी ड्रिल हो जाती है ना, कल को अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं हमारी कंट्री में, राइट? तो क्या हुआ कि गुजरात में एक ड्रिल चल रही थी टू चेक कि मिलिट्री के एक्शंस क्या क्या होंगे. तो उसमें क्या हुआ कि उस ड्रिल के दौरान कुछ लोग रोल प्ले करते हैं टेररिस्ट, और कुछ लोग जो असली जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की, वो इवैक्यूएट करती है कुछ वहां लोगों को ट्रेन से कैसे निकालेंगे. सो द पीपल हु आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ terrorist
in a government drill system, in a trial, were shouting Allahu Akbar. Now the problem here is कि भाई ये assumption कैसी है कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में कि वो अल्लाह अकबर चिल्लाएगा? भाई ये कैसी assumption है? मतलब कोई स्कूल के अंदर हो रहा होता तो मैं बोलता ये अपब्रिंगिंग है, बच्चा है, छोड़ दिया। ये कैसी assumption है? आप अपने लीडर्स को खुश करने के लिए उनको आप बोलोगे एक्चुअल सिनेरियो में तो ऐसे ही होगा ना, एक्चुअल सिनेरियो में। अरे कमाल बात है। सो दिस इज ऑल 5-6 years बैक, है ना? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने भाई मतलब आप क्यों कर रहे हो ये? सो अगेन अब मुझे 3 रीजंस बड़े क्लियरली, हो सकता है कोई चौथा पांचवा भी हो, मेरी लर्निंग से मुझे 3 रीजन दिखते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है तो आप इवॉल्व हो, माफी मांगो एक जनरेशन से और उनके लिए काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अब जस्ट कमिंग टू द सेम डायरेक्टर जिन्होंने मुल्क बनाई, अनुभव सिन्हा। मुल्क बनाई उन्होंने एक फिल्म, वो इस्लामोफोबिया के साथ लड़ते हैं उसमें, राइट? उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 10, एक फिल्म आई 10 बहाने कर, यू मस्ट हैव हर्ड, आपके बचपन में आई होगी फिल्म। उस 10 में पंकज कपूर was playing a villain who was a Muslim, who was a character as Muslim। वही आदमी है अनुभव सिन्हा, वही आदमी है जिन्होंने पंकज कपूर को एज मुस्लिम विलन दिखाया और उन्होंने फिर फिल्म बनाई मुल्क। तो मैं समझता हूं वो इंसान इवॉल्व किया होगा, है ना, कि उन्होंने बोला यार ये मेरे से हाँ गलती होगी, मैं कुछ। लेकिन कई डायरेक्टर्स बैक टू बैक, देयर पोर्ट्रेयल, दैट मीन्स इट्स हैपनिंग इंटेंशनली। एक बारी आपने करा, आपको समझ में आई होगी ना गलत है नहीं है क्या है, इट्स हैपनिंग इंटेंशनली, राइट? सो माय वेरी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, एंड नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम, एक सिख होगा तो ट्रक ड्राइवर ही बनेगा। भाई क्यों, मुझे समझ नहीं आया। आई वाज जस्ट अमेज्ड टू नो, हम ना आफ्टर माय कॉलेज डेज मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स आए टू एक्ट इन अ एड फिल्म। सर एक कैरेक्टर है सर बहुत फनी सरदार है। अरे मैं क्या करूं, फनी है तो सरदार, मतलब फनी इंसान है, मुझे बोलो ना मैं कर लूंगा। एक बड़ा ही सर, एक बड़ा ही जोवियल सा सिख है सर, वो कमाल का कैरेक्टर है। मतलब मुझे ना हैरानगी होती है कि बॉलीवुड द वे, और फिल्म इंडस्ट्री द वे दे वांट टू पोर्ट्रे दोस कैरेक्टर्स, कि वो सरदार है तो है ओए ओए बल्ले बल्ले कर रहा है, वो अगर मुसलमान है तो वो आतंकवादी है या गुंडा है टाउन का, है ना, अगर वो एक ब्राह्मण है तो भाई वो एक स्ट्रेचर पे है, चाहे वो टाउन का गुंडा है या नहीं है लेकिन वो स्ट्रेचर पे है, या एक सर्टेन कास्ट का आदमी है तो वो उसके लिए फाइट कर रहा है लेकिन मर जाता है एंड में। सो बड़ा ही मेरे लिए, एंड आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। मैं वही बोला, जो आपके लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है वो हमारा एक्सपीरियंस है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो पोर्ट्रेयल क्यों होता है, मैं बड़ा श्योर हूं कि 3 रीजन है, और वो 3 रीजन में से आखिरी रीजन, अब कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी जिसमें, और पोर्ट्रेयल सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है ना, पोर्ट्रेयल माइनॉरिटी के अंदर विमेन का भी है, दे हैव बीन कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट, है ना। पोर्ट्रेयल आपका एक सर्टेन कास्ट का भी है, एक सर्टेन रेस का भी है। कामवलिया कोई बंदा कैरेक्टर कर रहा है तो काला होना जरूरी है। एक बहुत अच्छी डिस्कशन शुरू हुई इसके ऊपर जब फैमिली मैन बना। हाँ, फैमिली मैन करके एक सीरीज है ऑन Amazon, right? So Samantha Prabhu was playing a role of a Tamil nationalist, I think, है ना। तो वो फाइट कर रही हैं उनसे, तो समंथा प्रभु का खुद का कलर इज अ सर्टेन कलर and Raj and DK painted her black to do. Now my point is they have their own reasons to do it, which I personally feel is not right, but there is a certain conversation around that color कि भाई क्यों करने की जरूरत है, तुझे काला क्यों करना है, उसको साउथ बंदा काला ही होता है, ये क्या थॉट है? बट देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ना, एटलीस्ट हैपनिंग,
बट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस देयर इज नो कॉन्वर्सेशन. ये अब हम दो मर्द बात कर रहे हैं एक औरत के बारे में, मतलब औरत बात ना करे, औरत भी तो बात करेगी ना अपनी. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अब बड़े लेवल पे विमेन का पोर्ट्रेयल की बात होती है फिल्मों में, लेकिन कर मर्द रहे हैं वो बात अपने परस्पेक्टिव से. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन माइनॉरिटी is specifically coming, and it is coming intentionally from myself. If you're doing it once, I get it कि आपने गलती करी, आपको सोचा नहीं. But as an artist, as a creator, you have a certain responsibility also. You know, अगर वो responsibility आप नहीं निभा रहे तो आप फिर artist नहीं है मेरे हिसाब से. Plus, coming to that point of मैं एक बात बोल रहा था बीच में भूल गया, about the portrayal of the certain character कि ये आतंकवादी है तो मुसलमान है, ये जोवियल है तो I was saying something मैं भूल गया, but हाँ, my point is the three reasons. हाँ, third point was the Kashmir file. You know, you need to understand that Vivek Agnotri, whose career was almost done, made a film about Kashmiri Pandits. Important issue to talk about, like 84, like 1992, like 2002, like any other Kargil war. Important issue to talk about, right? But it is not a conversation. It's a depiction of certain things. Okay? The person who shared my contact with you made a play. Well, his team made a play after 2 years of he leaving the college on Kashmiri Pandits. Okay? And the interesting part was that the play had a similar kind of an approach which Vivek Agnothi's film have. Right? And then we had a conversation about the play, and I asked them that, you know, आप मुसलमानों को ऐसे क्यों एक सर्टेन वे में क्यों डिपिक्ट कर रहे हो? तो उन्होंने बोला सर यही तो हुआ था, यही तो हुआ था. मैंने बोला ये नहीं हुआ था. जिसने कश्मीरी पंडित को मारा वो मुसलमान नहीं था, वो एक इंसान था जिसने मारना था. ऐसे तो मैं बोलूं कि 1984 में सिखों को हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मारा, ये नैरेटिव चेंज हो गया ना. ऐसे तो मैं बोलूं कि दो सिखों ने कोट एंड कोट गोली मारी इंदिरा गांधी को, यही हुआ ना फिर. मतलब यू आर you just giving a color to a certain incident, right? औरंगजेब ने ये किया. अरे औरंगजेब मुसलमान से पहले एक ऐसा इंसान था जिसने गलत किया. इससे एक मुस्लिम अगर व्यक्ति गलत करता है तो मतलब बाकी सब कैसे प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं. बट द फिल्म हैव दैट पावर टू डू इट, है ना. फिल्म कहती है कि सब ऐसे हैं भाई, और मैंने जैसे बोला कि पहले से एक अंदर से एक डाला हुआ है ना एंग्स्ट उनके खिलाफ, वो एक आता है, यू नो. या portrayal is really stereotyped, and it's happening intentionally, I feel. Matlab, I'm very sure that it's happening intentionally. Yeah. That was very intriguing conversation that we had right now. And coming to the point that the film is made, right, and the portrayal is done. Do you think the economic gain of such films, reflect a certain perspective of the society, and how, as a society, we also propagates creation of such films? And like Okay. this is deep film. How can then filmmakers improve such deep-rooted beliefs that are, seeped through the society through the film? Then So the 3-4 parts to this. Now coming to the economic part of a film. Remember the last conversation we were having. बॉलीवुड की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 करोड़ बंदा देखता है जाके. ऑलमोस्ट 1 से 2 3 हद इतना ही देखता है इंडिया में. ठीक है, विच इज नॉट इवन 1%.
which is not even 1%. ठीक है? Now you need to understand this here, that are they doing it for an economic growth? Are they doing it for an economic फायदा? Of course, because you know what polarization is, right? एक सोसाइटी पोलराइज्ड है एक सर्टेन स्टेट के टाइम. अभी पावर्स ने सोसाइटी को पोलराइज कर दिया. एवरीवन इज वोटिंग फॉर अ रिलीजन, है ना. अभी रिसेंटली मैं देख रहा था आरएसएस के प्रमुख का बयान आया, बोले कि ये वर्ना सिस्टम खत्म कर दो, है ना. बड़ी कमाल की बात है कि वर्ना सिस्टम खत्म कर दो. शेड्यूल कास्ट को बोलो हिंदुओं की तरह सोचे, है ना, ताकि वोट बैंक बड़ा हो जाए और एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है. थिंक लाइक अ हिंदू. नाउ आई डोंट सी एनी नेशनलिस्टिक अप्रोच हियर. It's a very religious approach. Think like an Indian is a good सोच. Think like a Hindu is a problematic one. But चलो, खतरे में है हिंदू तो सोचे हो. Now economic gain एक सेक्ट है, और ये सेक्ट मैं मानता हूं कि 2014, 15, 16 के बाद बढ़ गया है, जिसको ये चीजें पसंद है. ठीक है ना. जो कि मिस कर रहा था बी.आर. चोपड़ा की रामायण, जो कि मिस कर रहा था यू नो डिस्कसिंग हिंदू इश्यूज, जो कि मिस कर रहा था टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स प्रॉब्लम्स और मुस्लिम इश्यूज, है ना. तो उनके लिए ऐसी फिल्म्स कमाल है, मतलब दे शुड वॉच इट. अब इट्स वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, वो पैरेलली वो ग्रोथ कर रहा है ग्राफ. वोट बैंक इज इंक्रीजिंग, सर्टेन टाइप का पीपल वाचिंग सच फिल्म्स इज इंक्रीजिंग, राइट. मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे एक फिल्म बनी, फ्लॉप हो गई, मतलब बॉक्स ऑफिस चली नहीं, क्योंकि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग मनमोहन सिंह. मोदी पे एक फिल्म बनी, बॉक्स ऑफिस नहीं चली, पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोदी. न्यूज पे चलता रहता है ना 24 घंटे मोदी मोदी मोदी. नो, व्हाट आर पीपल इंटरेस्टेड इन वाचिंग? यही सवाल है ना फिल्म बनाते वक्त. तभी तो मैं इकोनॉमिक गेन सोचूंगा ना. पीपल, लोगों को क्या इंटरेस्ट है? लोगों को इंटरेस्ट है यार कि हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों को, राइट. ये अब हम, मैं और तू का जो आइडिया है ना, हमारे और तेरे लोगों का, ये खतरनाक है. तो पहले क्या करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, हम एक फिल्म बनाते हैं कश्मीरी पंडित्स पे. हमारे लोग हैं ना वो, भी सर्टेन तरीके से हमारे लोग हैं, तो उन पे फिल्म बनाते हैं. अब हमारे लोगों के ऊपर फिल्म बन रही है, तो हमारे लोग तो देखने आएंगे लिटरली. नाउ हमारे लोग देखने आते हैं ऐसी फिल्म, इसलिए हमारे लोगों में बन रही है, ये भी हो सकता है. आइदर वे, राइट. बट देयर इज सर्टेनली अ सेक्ट who really wants to discuss this. There's a very beautiful report by the Quint on increase of Hindu nationalistic songs played by DJs. You should really watch that report. आपको वो गाने सुनने चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है द क्विंट की, कि ये जो गाने हैं भारत माता पे, जो एक किस्म का नैरेटिव पावर बना रहा है ना कि भारत माता होनी चाहिए, एक किस्म का नैरेटिव पावर बना रहा है. अब वो जो नैरेटिव पावर ने बना दिया, जिससे वो लोग पावर में आ गए, तो देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर वोटिंग फॉर दैट पावर. तो वो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज आल्सो माय ऑडियंस टू वॉच द फिल्म. सिंपल मैथ्स. तो क्यों ना बनाई जाए ऐसी फिल्म. 13 करोड़ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है. तुम एक मोदी जी, आई थिंक 8 से 12 करोड़ लोग, इतने ही हैं लोग, ठीक है, जिन्होंने मोदी जी को मोदी जी बनाया है. ठीक है. अब 8 करोड़ लोग तो फिल्म देखने भी नहीं जाते. सही बात है. 2 करोड़ जाते हैं ना देखने फिल्म, तो और मेरी फिल्म 500 करोड़ की हो जाएगी. 2 करोड़ फिल्म देखने कर जाएंगे यार, 3 करोड़ जाएंगे, तो 500 करोड़ की फिल्म कर रहा हूं मैं. ठीक है.
तो मुझे 8 करोड़ का 30% पीपल ही तो पिक्चर हॉल में लेके आना है, यही करना है ना मुझे मैथ्स के लिए। मैं 10% ले आया, 80 लाख लोग ले आया 300 रुपए की टिकट पे, चल 240 करोड़ की फिल्म कर दी, राइट। सो ऑफ कोर्स आइदर वेज, अब मुझे नहीं पता ये क्या एग्जैक्टली है क्या वे, क्योंकि मैंने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है, मैं डायसेक्ट ही कर रहा हूं ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन, राइट, कि हाँ या तो वो लोग फिल्म देखना चाहते हैं इसलिए वो फिल्म बनती है, और या फिर वो फिल्म बनती है तो वो लोग देखना चाहते हैं। बट ये लोगों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये 100% है, ये एक नेक्सस है। अब मैं बात करते हुए जैसे रियलाइज कर रहा हूं कि अब मैं एक प्ले बनाता हूं, मान लो मुर्ग मुसल्लम, ये कौन लोग देखेंगे? मुझे सस्टेन भी तो करना है ना प्ले को, तो ये कौन लोग देखने आएंगे इस प्ले को? वो लोग जो आप जैसा सोचते हैं, या वो लोग जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं, आइदर। तो अब मेरा फॉर्म ऑफ द फिल्म, मेरे शॉट्स इन द फिल्म, मेरी ब्लॉकिंग ऑफ द थिएटर, मेरा चॉइस ऑफ म्यूजिक, इस बात पे अगर बेस्ड है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ तो इकोनॉमिक गेन या सस्टेनेंस के लिए काम कर रहा हूं। अगर मैं अपनी बात बताने के लिए ये बात बना रहा हूं, फिर कौन लोग देखते हैं कौन लोग नहीं देखते, मुझे किन के पास लेके जाना है, फिर ये डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। इट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। समझा पाया? सो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक गेन्स तो है इसमें। अब आ जाते हैं अगली बात की, सोसाइटी के अंदर हम क्या था पार्ट की, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या पहले हम एज अ डायरेक्टर कैसा बदलाव, क्या था सवाल Yes, आपका? so the question would be that as a film director yourself, how do you think that this fraternity can improve those deep-rooted beliefs that are, as you said, ingrained in us, or we are nurtured through those beliefs, and how can Jatin, we improve on those perspectives? Jatin, there's too much responsibility to be given to this first fraternity one. Hmm. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मत दो कि वो मतलब वो दुनिया बदल दें। आप कह रहे हो ये फटर्निटी, ऐसा नहीं होता। ये फटर्निटी की ड्यूटी ये है कि अगर वो किसी चीज के लिए फील करते हैं तो उसको क्रिएटिवली, है ना, पैकेज करके, बना के, क्रिएट करके लोगों के बीच में लेके जाएं, और वो बात जो वो फील करते हैं अगर वो सही है मल्टीपल लोगों के लिए, तो लोग उसमें बिलीव करें और साथ जुड़े उसके। मुल्क जैसी फिल्म सस्टेन ही कर पाई होगी बॉक्स ऑफिस, है ना। आई डोंट नो हिट है फ्लॉप है, मैं बिल्कुल उसके नंबर्स मुझे याद नहीं है, बट वो फिल्म फिर ऐसी फिल्म बनाओ, अब उसको देखने वाले वही 50 लाख लोग हैं जो बिलीव करते हैं टॉपिक पे, तो फिर उस फिल्म का मुद्दा उन्हीं लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग कराना था बिलीफ। वो फिल्म उन 50 लाख की जगह बाकी 50 लाख ने देखी जो बिल्कुल एक्सट्रीम सोचते हैं, है ना। तो उन लोगों को या तो अच्छी लगी होगी, समझे होंगे बात को, बुरी लगी होंगी, बट नंबर आ गया होगा उसका इकोनॉमिकल, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सा डाइसी मामला है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बट इस फटर्निटी का काम एज क्रिएटर्स तो यही है, प्लस ऑफ कोर्स बिकम अ प्रेशर ग्रुप। I remember when Kanhaiya was fighting elections from Begusarai, a lot of people as artist community went there, supported a certain cause because he was labeled in a certain way. तो जावेद अख्तर साहब गए वहां पर, तो एक हुआ ना कि जावेद अख्तर जिसने शोले लिखी है भाई वो आके बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स बिकम अ प्रेशर ग्रुप, make films on topics that you feel is important to talk about, right, and make a very conscious call of what is your presentation, what is your representation of a certain sect in your creative piece। ये बहुत ही सोच समझ के इस
को करना पड़ेगा और धीरे धीरे थिंग्स विल चेंज आई फील। मतलब मुझे नहीं पता कब कितना, मुझे नहीं लगता है फटर्निटी बदल सकती है, इतना आसान नहीं है सब कुछ, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। So the question in this only being that as a director, when you write a play, when you create a content, what are the small things that you know are very conscious about when you uh, portray a certain identity or certain minority which we're having a conversation about? So what are those key details that as a director you look out at? Jatin, interestingly, it's very important. Most of my time while creating a creative piece, either a film or a play, goes into telling a certain thing in a way that number one I believe in. ठीक है? Because I I don't know who is coming to watch it. I don't know who is coming to watch a certain creative piece, right? मुझे नहीं पता ना कि कौन नाटक देखने आ रहा है, कौन फिल्म देखने आ रहा है। अब किसी मल्टीपल लोग आ रहे हैं, उनको मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। सो आई कैन कंट्रोल देयर इंटरप्रिटेशंस, राइट? व्हाट आई कैन डू इज to interpret that character in a way which is right for me, and right for me comes from my research, my education, my upbringing, I being sensitive towards the society. So for example, so just to give you a small example of a play called Seek Kebab जो हमने बनाया। अब क्या होता है, इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि I haven't shared with a lot of people this thing. अब क्या कि मैंने अनाउंस कर दिया कि 1984 पर एक प्ले बना रहा हूं मैंने अनाउंस कर दिया। When I tell you I am making a play on 1984, what will you do? You will come and as an audience. So when you sit in an auditorium to watch that play, you have a certain thought, right? कि भाई ये तो उस बुरी चीज जो हुई थी उसके बारे में बात करने वाला है। मेक सेंस? गलत तो नहीं बोल रहा? Now, as a maker, as a director, as a dramaturge, my job was to make you neutral first. मतलब मैंने प्ले शुरू करने से पहले एफर्ट ये डाला कि आप कोई भी मेरी बात को रेज्ड आईब्रो से ना देखें, आप मेरी बात को वैसे देखें जैसे मैं चाहता हूं देखें। अब ये गलत बात है, मतलब मैं आपकी इंटरप्रिटेशन कंट्रोल करना चाहता हूं, ये गलत बात है, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं मेरी बात आप तक वैसे ही पहुंचे जैसे मैं बताना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे आपको और मुझे सिंक करना होगा, राइट? उस सिंकिंग का काम में मैंने कुछ प्री अजम्पशंस लगाई आपके बारे में कि आप रेज आईब्रो के साथ आ रहे होंगे, आपके दिमाग में सर्टेन इमेजेस होंगी 84 की, आपके दिमाग में सर्टेन 90 रुपए अगर मैं प्ले कर रहा हूँ 2000 रुपए, तो आपके दिमाग में एक ट्रेन चलती हुई दिख रही होगी, आपको बाबरी मस्जिद टूटती हुई कुछ चल रहा होगा ना आपके दिमाग में, आपको लगेगा यार ये तो वही बात करने वाला है ना। आप आओगे देखने की मैं उस बात को डिफरेंटली कैसे करने वाला हूँ, यही बात है, आप यही देखने आ रहे हो। नाउ माय पॉइंट हियर वाज कि मैं पहले तो आपको बोलूं जस्ट रिलैक्स, क्योंकि मैंने एक थॉट से ये बात रखी है तो आप उसी तरीके से लो तो बेहतर है। तो मैंने क्या किया उसमें एज अ मेथोडोलॉजी या एज अ टूल मैं कहूंगा, क्या किया मैंने कि मैंने एक कॉमेडियन को खड़ा किया जिसने पंजाबी और सिख होने के बारे में जोक किया। हु इज अ सिख गाय? तो इससे क्या हुआ, ऑडियंस बड़ी चिल हो गई, ऑडियंस को लगा अरे अच्छा अच्छा मतलब मजाक चल रहा है यहाँ, तो ऑडियंस थोड़ी न्यूट्रल हो गई। So as a director, it was my responsibility to just tell them that we are same, हम sync में हैं, let's come into a sync first. वो syncing बहुत important है। तो ये मेरा टूल है, ये मैं ऐसे करना पसंद करता हूँ। कभी कभी सही लग जाता है, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, whatever. But in a theatrical piece, that's what I do. In a film, now it depends
कि वो कहाँ रिलीज हो रही है। अगर वो रिलीज हो रही है एक यूट्यूब पे, तो मेरे पास 30 सेकेंड्स है जस्ट टू होल्ड दैम। तो मुझे बताना पड़ेगा मेरा ये पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव के लिए देखो पूरा बात, ये मुझे बताना पड़ेगा। एक फिल्म हॉल में देख रहे हो आप वो वाली फिल्म, तो क्या होगा कि आप आए हो घर से टाइम निकाल के, तो आप आधा 1 घंटा तक भी मेरे साथ सिंक होने में टाइम लग जाएगा। तो इट्स गुड, इजियर, मेरे पास और इजी हो जाएगा। वही इंस्टाग्राम पे देख रहे हो अगर आप उस फिल्म को, तो मुझे और फास्ट रखना पड़ेगा। तो वो सिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। वाइल क्रिएटिंग इट, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो मेरे लिए, इसलिए भी मतलब मैं कैसे ध्यान रखता हूं कि मैं ये देखता हूं कि मैं उनको कैसे उस सिनेरियो में देखता हूं। सो फॉर एग्जांपल, नाउ 84 में लेट्स से मल्टीपल ऐसी चीजें हुई जो कि अगर मैं स्टेज पर दिखा दूं या फिल्म में दिखा दूं, तो इट कैन ट्रिगर सर्टेन इमोशंस which is dangerous for the society, है ना। So it's my responsibility as an artist कि मैं वो ट्रिगरिंग वाले चीजों को कंट्रोल कर सकूं। सत्य दिखाना, अब मैं बोल दूं ना ये कि फॉर एग्जांपल somebody let's say urinated on holy books, right? मेरे पास रिकॉर्ड्स में है ये, मेरे पास इमेजेस हैं इसकी, बट इफ आई शो इट in a certain way, in a whatever way, it may trigger certain emotions, that are not good for the society. So as an artist, I have to be very very specific of my representation of a certain narrative also, कि पता चले कि मैं एक नया बोल दिया जाए मुझे कि प्रभजोत तो एक सर्टेन किस्म का दंगा भड़का रहा है, लेकिन इस पे दूसरी डिबेट ये भी है कि तो सच्चाई दिखा रहा है ना। ये वो वाली बात होगी ना, सच्चाई दिखा दी भाई। तो सच्चाई तो मुझे पता है ना, आप एक क्रिएटिव पीस के साथ उस सच्चाई को ही तो इंगेजिंग बनाते हो ना, आप उस सच्चाई को सिंक में लेके आते हो ना ऑडियंस की। तो बहुत सोच के ही रखना चाहिए। मैं अगर, और मेरे साथ भी हुआ है पास में, व्हेन आई वाज डूइंग इनिशियली आई वाज डूइंग थिएटर, मैं बहुत बारी कोई एक सीन होता था जहां पर मुझे एक बुरा किस्म का इंसान दिखाना होता था unintentionally, thought process wise, a lot of time I have entered into it as an extremist Muslim in that character, but over the period of time I realized that oh shit, I was wrong, so अब वो ना हो उसके लिए मुझे बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और वो डालने चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट यू नीड टू पुट दोज एफर्ट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई औरत घर का काम कर रही है, खाना बना रही है, तो मेरा पोर्ट्रेयल यही है ना। फिर एक सीन के अंदर एक बच्चा और एक पापा बात कर रहे हैं, और पापा का एक डायलॉग लिख दिया मैंने, अरे सुनती हो, वो मेरे लिए खाना बना दो। दैट मीन्स दिस पोर्ट्रेयल ऑफ अ विमेन इज प्रॉब्लमेटिक हियर, कि वो खाना ही बनाती है। कोई बोलेगा ये तो रियलिटी है लेकिन मेरे घर की, कोई ये भी बोलेगा कोई इंसान, अरे तो रियल में मेरे पापा ऐसे, वो ये रियलिटी ही तो प्रॉब्लमेटिक है, so it's very important that as a artist we take certain calls. The depiction is very proper. इसलिए तो मैं कह रहा हूं थिएटर बनाना, फिल्म बनाना एक स्किल है, सिर्फ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। यू नीड टू नो व्हाट विल बी द शॉट हेयर। आपको पता होना एक क्लोजअप किस बात का लग रहा है, किस बात का क्लोजअप है, किस बात का वाइड है, किस बात का मिड है, लाइट कहां से आएगी, क्योंकि एक लाइट यहां से आना और एक ऊपर से आना में एक अलग बात है। तो वो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है और करना चाहिए। दैट्स माय टूल ऑफ मेकिंग अ क्रिएटिव पीस और विजुअल पीस। That was quite a great, I would say, anecdote about how you do it. And
I would. It was a great session, and I would conclude it by just asking the last question. And Yeah. it isn't a question, but I would say inquiry into how do you think now we have the internet boom, and now we have a more aware youth around such topics, and now we're having conversations around it. How do you speculate the next 10 years of cinema? With we've talked about the historical evolution. We talked about the current environment. How do you speculate the behavior and the environment in the next 10 years or 20 years of cinema? And do you think the awareness or the more aware youth right now will improve this environment in the future? मैं predict तो क्या ही करूं, मतलब I can't predict anything. I think it will be surely the mainstream cinema will surely be in sync with the power that we will be ruled by, right? uh, जिस किस्म की सरकार होगी उस किस्म का सिनेमा बनेगा, राइट? 100% I am very sure that with the coming of OTTs, with the coming of much more independent channels, much more independent platforms, there is really good work happening. I mean, there is great political commentary happening right now, and I wish that it happens more than ever, right? मुझे ऐसा लगता है कि बनेगा पॉलिटिकली कमेंट्री वाला काम, मुझे ऐसा लगता है. I have seen a lot of comedians being sensitive about mental health issues now and being very aware of what they're saying. पहले कुछ कॉमेडियंस थे जो कुछ भी बोल रहे थे, फिर आए जो सोच समझ के बोलने लगे, अब थोड़े से मुझे लगता है सेंसिबल. लेकिन Jatin, to be very frank, this is coming from a little privileged background. The reality is very different on ground, very different. There is an app called Mubi, MUBI. You know about them? No. But interesting app है Mubi. Curated films चलती हैं वहां पर. लेकिन वो इतना महंगा, इतना इस फिल्म मेकर्स के लिए है, इतना नीश है दैट आप जिस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हो ना वो वहां मिलेगा आपको, राइट? सो अब वो थोड़ा है ये, और हमेशा से रहा है, कुछ नया नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ये. मतलब हमेशा से वो प्रिविलेज इंसान इन बातों के बारे में बातें करता है. मोर प्रिविलेज इंसान कीपिंग अ ड्रिंक इन हिज हैंड talks about these things, but the reality is very different on ground. फिल्म मेकर को सस्टेन करने के लिए हो सकता है कि सरकार के लिए ही फिल्में बनानी पड़े, या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना एक सर्टेन नीश ढूंढ ले जो उनके लिए सस्टेनेबल मॉडल बना दे. फॉर एग्जाम्पल अनुभव सिन्हा, people like Anurag Kashyap, they are trying to make a niche जो उनकी फिल्में वर्क करा दे, but I am really not sure if it would happen or not. But I wish it happens. In terms of your what will happen in next 20 years with an aware social media and everything, again it's a very privileged thought. You have an Alt Balaji app, you have a Geo app. I don't know if you know that or not. Alt Balaji have almost subscriptions in crores. At the same time, your Netflix is still in 30-40 lakhs, right? So earning model अलग है, but the content on Alt Balaji is a certain way of content. वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं. If you're talking in terms of the content presentation, so can't say, but I wish that makers like us, makers around the globe, not just in India, just resist to certain powers now. And it's time, मुझे लगता है it's time to take sides now. मतलब you cannot be diplomatic कि नहीं ठीक है सरकार ऐसी रहती है, हर बारी होता है वगैरह वगैरह. इस बारी हो रहा है और ये गलत हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बात.
you know. So that's the only thing I have to say. I wish that people start making content which directly confronts the powerful people. Yeah. Thank you so much, sir. It was a very, very Thank interesting and inspirational conversation that we had with you. And it was, I would say, very empowering when you hear such observations, anecdotes from a person who is in the industry like you are. And it was very nice to you. It was very nice of you to take a time for this. And thank you so much. you, Jatin. With this, we'll end this episode. And thank you so much.